हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? I, CA Vaibhav Goyal, welcomes you in this first lecture of the basic concepts on income tax. In this lecture, we shall be discussing the various definitions of Income Tax Act which are relevant, various aids of interpretation of the Act. We shall also be discussing the charging section, and we shall be discussing certain rates and the alternative taxation regime as introduced by the various amendment laws or ordinances as we call it, and certain amendments we shall be doing with the respective chapters when we discuss them. Alright, so before beginning to understand the income tax law, we must know how the laws are framed, how the lawmakers get the power to frame the law in our country. The framers of the constitution specifically dealt that the law making authority, be it parliament or the state legislature, should draw its powers from the constitution. So the constitution is the source of all laws in India. Alright, so constitution is the source of all laws in India. So now what does the constitution says? There is one article, article 265. What does this article 265 says? This article says that no tax can be levied without the authority, no tax can be levied without the authority of law. This is very important, the authority of law. How does we know that the action of the executive is backed by a law? Law can be judicial law, that is in the form of a judicial precedents, court cases, court decisions, and the law can be the law as made by the parliament or the state legislature. Now, how do we come to know whether income tax, which is the subject matter of today's lecture, that this law can be framed by the parliament and not by any state legislature of UP, Bihar, Uttarakhand or Tamil Nadu or Telangana? How come we come to know? 265 says there must be an authority of law. Authority of law can be be a legislation or by a court decision. Courts cannot legislate. Constitution says the legislative power is with the parliament. Only authority with the courts is to interpret the law as framed by the parliament or the state legislature. So authority, पहली authority क्या होगी? That there must be a legislation to tax income. Alright, and that legislation should draw its power from the constitution. Now because we have a federal system, both state legislature has the power to introduce laws, union has the power to make laws. So under whose jurisdiction this comes? Tell me in the comment box, who is having the power to legislate on income, taxes on income? It is union government or the state government? Yes, you are right. It is a union government because you always see the union finance minister coming up and presenting the budget. So it is giving an inkling that it is within the domain of the union government. That's why finance minister from the union government, be it Nirmala Sitharaman or be it P. Chidambaram in the past or be it Arun Jaitley in the past, who were at the center, were authorized to present the budget. Though budgets are also prepared and submitted in the state legislature, but the सब हर किसी की नज़रें सिर्फ यूनियन बजट पे रहती थी. क्यों? क्योंकि उससे हमारे इनकम टैक्स के जो रेट्स थे उसमें फ़र्क पड़ता था. तो दिस गिव्स एन इंक्लिंग दैट द इनकम टैक्स एक्ट इज विद इन द डोमेन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. बट हाउ डज, वेयर, कहाँ लिखा है ये एक्ट में या कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? इट इज रिटन इन आर्टिकल 246. आर्टिकल 246 में क्या है? दैट इट बाइफरकेट्स द सब्जेक्ट मैटर्स. भाई एजुकेशन है, हेल्थ है, बहुत सारे मैटर्स हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ मैटर्स. कंस्ट्रक्शन है, इनकम टैक्स है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम है, टोबैको टैक्स है,
अल्कोहल पे टैक्स है, पेट्रोल पे टैक्स है, बहुत सारे आइटम हैं जैसे मैटर्स के, फॉरेन अफेयर्स के मैटर्स हैं, डिफेंस के मैटर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशंस के मैटर हैं। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स के जो पावर्स हैं वो तीनों में बांटी गई, दो पार्ट में बांटी गई हैं, स्टेट गवर्नमेंट में और यूनियन में। ऑलराइट, और ये कहा गया कि स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और तीसरी लिस्ट बनाएगी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट हैज द सोल डोमेन, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर विच इज द विधानसभा हैज द सोल डोमेन। कॉन्करेंट लिस्ट बोथ हैव द डोमेन, और अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया है इट विल सुपरसीड विधानसभा, मीनिंग देयर बाई जो लॉ अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर बनाती है तो, इफ द मैटर कम्स विद इन द डोमेन ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। अगर वो मैटर स्टेट लिस्ट का ही था, विद द मैटर वॉज ओनली टू बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर एंड द यूनियन पार्लियामेंट मेक्स द लॉ, that law can be not more than a model law because the domain was not within the jurisdiction of the union parliament, it was within the domain of the state legislature, so the state legislature's law will follow. However, if the entry is in the concurrent list, then both can make the laws, and if the central government makes the laws, that it will supersede the state law. Now whether this entry of income tax act, the income tax act gets a source from the union list, that's why it is being made by the union parliament. All right, so what is the entry? The entry is named as taxes on income other than agriculture income. So what does this say? That taxes can be collected on income. Income can be from corporation income, income can be from business, income can be from salary, income can be from agriculture as well. So when income can be from agriculture, so whether this union parliament is authorized to collect tax on agriculture income, the answer is no. Why? Because the framers of the constitution felt that the state legislature also need to have some revenue, they have to also meet their finances, so certain items of revenue were kept for the state legislature and certain items were kept for the union legislature. Though it is a matter of another reform or that the income tax collected by the union is also shared with the state legislature or the state governments in the ratio of their collection subject to the maximum of 42% as has been decided by the Niti Aayog or previously decided by the finance commissions. Coming of the BJP, the finance commission's mandate has been limited, so the ratio has been fixed as to 42%. That's why there is a need of surcharge and cess. This surcharge and cess is specifically for the purpose of union government, the authority leaving that surcharge or cess. The union government is not bound to share it with the state governments. However, with respect to income tax, they are bound to share the revenue with the respective state governments in the ratio as fixed by the finance commission or the Niti Aayog, as the case may be. Alright, so agriculture income, the revenue goes to the, if the state legislature wish to tax it. I have not found any law in UP as such, in Delhi as such, which tax agriculture income, though there was tax on agriculture income in Kerala or some parts of southern India, but now as a matter of consensus, no state as such levies agriculture tax for now, because the agriculture economy is in stress and we need to support it. So there is no income as such. If there would be any law, that would be in the domain. Alright, so अब तक हमने क्या जाना? That union government can levy tax on income other than agriculture income. Alright, we will be doing how, if somebody has an agriculture income, how the tax has to be calculated, that by through partial integration. Alright, this we have to remember, that we have to do it by partial integration. Though tax will not be levied on the agriculture income per se, but the existence of the agriculture income would shift the rate on the other income. This is called as partial integration. Alright.
So this is the basics. All right, we did article 265, we did article 246. All right, this has given us the clear inkling that the Income Tax Act is constitutionally valid. All right, so all right, now let's move on to what are the sources of the law. Gangotri क्या है? Constitution. Oh, that is the glacier from which the Ganga flows, no? That Gangotri, that glacier is the constitution. Now उसकी कई सारी धाराएं होती हैं. Now what are the dharas which form this law of income tax? Whether it's just limited to the Income Tax Act 1961 per se, or whether it has other facets there too, other guiding forces there too. Now understand it. Let's understand it. See, the main is Income Tax Act. Income Tax Act is passed by the Parliament. Okay, no other legislature can pass this act. It can be passed by the Parliament. Any amendment to this act can be passed by the Parliament. Generally, the amendments are done through Finance Act. But now, seeing the situations at hand, the government is situation of the economy is not so very good. The government is taking the route of ordinances, meaning thereby the president is using his legislative power, and when the Parliament convenes and they pass the Amendment Act, which is not the Finance Act per se, but the Taxation Laws Amendment Act 2019 or 2018, the year in which it is passed by the Parliament. Though ordinance need to be approved by the Parliament itself. So the Income Tax Act is the basic law against around which the whole concept or the whole theory of the taxing of the income revolves around. It is unlike the other civil or criminal laws. How come? How it is different from other civil and criminal laws? In the civil laws, we have the Basics of Act. Like for crime, we have Indian Penal Code, which defines the offence and the penalty. And we have the Criminal Procedure Code, that is the procedural law. All right, which describe the mode, which describe the procedure, that how this offence would be booked, investigated, prosecuted and appealed. Indian Penal Code is silent on the matters of procedure. Alright, it is talking only about the substantive law. So if we reduce the other civil laws are merely reduced to substantive law. However, Income Tax Act is not only a substantive law meaning which income is taxable, चार्ज क्रिएट करता है, मेथड मैकेनिज्म बताता है कंप्यूटेशन का, पेनल्टी बताता है और प्रोसीजरल भी बताता है. प्रोसीजरल कैसे है? एडजुडिकेशन, जिसे हम कहते हैं असेसमेंट. अपील का प्रोसीजर बताता है. सो दिस इनकम टैक्स एक्ट
is not only substantive law, it is substantive plus procedural law, बिकॉज यहां इनकम टैक्स एक्ट में आपके राइट्स भी क्रिएट होते हैं और आपकी ड्यूटीज भी डिफाइन होती हैं. ऑलराइट, सो दिस राइट्स कैसे क्रिएट होते हैं? आपके प्रोसीजरल लॉ से ही राइट्स एमिनेट करते हैं. जब हम चैप्टर्स ऑन अपील, असेसमेंट्स ये सब बात करेंगे तब हम एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल एविडाइसी द्वारा दी गई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उससे कैसे राइट्स एमिनेट करते हैं एक असेसी के, अपेलेंट के, और वो कैसे सब्सटेंटिव राइट है, दो इट इज इन द नेचर ऑफ प्रोसीजर बट इट गिव्स अ सब्सटेंटिव राइट और वेस्टेड राइट. जब वो हम चैप्टर ऑन अपील्स एंड असेसमेंट्स करेंगे तब हम देखेंगे. ओके, अभी हमें ये जानना सिर्फ इतना जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट इज एन इंटीग्रेटेड एक्ट विच हैज बोथ सब्सटेंटिव लॉ कि भाई कौन सी इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, कौन सी पेनल्टी लेविएबल है, और प्रोसीजरल लॉ भी है कि वो मेथड ऑफ कंप्यूटेशन कैसे होगा, कि इनकम चार्जेबल थी, एस्केप हो गई कि नहीं हो गई, अगर एस्केप हो गई तो वो कैसे डिटरमाइन करी जाएगी कि कैसे, कि इन सर्कमस्टेंसेज में हुई थी और ये एक पेनल ऑफेंस है कि नहीं है. पेनल्टी तो बता दी, सर्कमस्टेंसेज बता दिए कि ये पेनल ऑफेंसेज हैं, बट वो सर्कमस्टेंसेज हुए कि नहीं हुए. जैसे आपने देखा एफआईआर होती है, क्राइम होता है, तो एफआईआर होने के बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने जाती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर मजिस्ट्रेट के सामने आर्गूमेंट्स होते हैं, फिर उनको चार्ज फ्रेम होता है, फिर जज साहब उन्हें सुनते हैं, सुनने के बाद फिर आर्गूमेंट्स होते हैं और फिर एक डिसीजन पास करते हैं, डिस्चार्ज का पास करते हैं, अक्विटल का पास करते हैं, या कन्विक्शन का पास करते हैं. तो ये जो प्रोसीजर है वो सिविल प्रोसीजर, सॉरी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया है, इंडियन पीनल कोड में नहीं बताया गया है. ऑलराइट, और इंडियन पीनल कोड में क्या बताया गया कि ये ऑफेंस है, मर्डर किसे कहेंगे, डकैती किसे कहेंगे, कल्पेबल होमिसाइड किसे कहेंगे, और पेनल्टी क्या होगी. मर्डर करने पे आपको फांसी सजा होगी, 10 साल की सजा होगी, 7 साल की सजा होगी. तो वहाँ दो एक्ट, सिविल लॉज में भी ऐसा है कि अगर आपने देखा प्रॉपर्टी के, अगर वो प्रॉपर्टी लॉ से संबंधित है तो प्रॉपर्टी लॉ में ये बता देते हैं कि अगर ये काम करना है, अगर ये करेंगे तो ये प्रॉपर्टी वैलिड मानी जाएगी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वैलिड होगी. अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ नहीं देखी तो इनवैलिड मानी जाएगी. चाहे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, स्टैम्प एक्ट है, उन सबको, वो सब अगर क्यूमुलेटिवली देखते हैं वो सब्सटेंटिव लॉ हैं, वो सिर्फ लॉ बताते हैं. सिविल प्रोसीजर कोड क्या बताता है, वो उस लॉ में जो राइट्स दिए गए हैं वेंडर के, ट्रांसफरर के और ट्रांसफरी के, या और भी किसी थर्ड पार्टी के, जो राइट्स उसमें डिफाइंड हैं एक्ट्स में, सब्सटेंटिव लॉ में, उन राइट्स का एग्जीक्यूशन या उन राइट्स को अवेल करने के लिए वी हैव अ प्रोसीजरल लॉ, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड. यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है, इनकम टैक्स एक्ट बार्स ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स. और इनकम क्यों? क्योंकि वो इनकम टैक्स एक्ट कंप्लीट कोड इन इटसेल्फ. वो कहते हैं भाई आप इसी में सीमित रहिए. इसी में कैसे सीमित रहिए? जो भी राइट्स हैं, जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी प्रोसीजर है, जो भी सब्सटेंटिव राइट है, वो सब हम इनकम टैक्स एक्ट में ही बता दे रहे हैं. आपको इसके बाहर जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है. यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड दिस एक्ट. सो हमारा इनकम टैक्स एक्ट फुल प्रूफ है, मतलब प्रोसीजर भी यहां बताया गया है और हमारा सब्सटेंटिव लॉ भी यहीं बताया गया है. नाउ कम्स इनकम टैक्स रूल्स. भाई इनकम टैक्स एक्ट तो समझ में आया, पार्लियामेंट देती है. इनकम टैक्स रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने आर्टिकल 265 में पढ़ा, इट शुड बी विद द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, एंड आर्टिकल 246 ऑथराइज्ड ओनली द पार्लियामेंट. Only in certain circumstances this legislative mandate can be exercised by the president through the central government in the form of an ordinance. So this ordinance would itself be required to be placed before the parliament. So whether this similar mandate is there for the income tax rules? The answer is no. Why? Because this income tax rules is a sub legislation. What is it? It is a sub legislation. भाई आपको 12AB में रजिस्ट्रेशन लेना है चैरिटेबल ट्रस्ट को, आपको इनकम टैक्स एक्ट के किसी प्रावधान का फायदा लेने के लिए कमिश्नर इनकम टैक्स के सामने रजिस्ट्रेशन करना है, अपील करनी है, तो उसके लिए एक फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, फॉर्म 35-36. तो वो जो फॉर्म है, अगर असेसिंग ऑफिसर को नोटिस भेजना है, वो नोटिस का जो परफॉर्मा है वो
जो प्रिस्क्राइब करना है, कुछ रूल्स में कोई कंप्यूटेशन देनी है कि फेयर वैल्यू कैसे कंप्यूट करनी है, एसेट ट्रांसफर हो रहा है तो इस एसेट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, वो एक तरीका तो ये है कि हम एक्ट में ही बता दें, पार्लियामेंट अपने वहाँ पर डिबेट करे और वो डिबेट करने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद सभी स्टेक होल्डर से वो एक्ट में बता दे। या दूसरा तरीका क्या है, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ऐसा करके छोड़ दे और वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो रूल्स को नोटिफाई कर सकती है थ्रू इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन द केस एट हैंड। सो क्या ये जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू को मिली है, वेदर इट इज वैलिड इन लॉ, द आंसर इज यस, बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम द लेजिस्लेशन। अब उसमें से एक ट्रिब्यूटरी निकल गई, पहले गंगोत्री से गंगा निकली, अब गंगा में से एक ट्रिब्यूटरी निकल गई। कहा क्या 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 ट्रिब्यूटरी निकल गई कि भाई ये इनकम टैक्स रूल्स हैं, उसकी अथॉरिटी किसको दे दी गई है, इसकी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई है कि भाई ये छोटे 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 मैटर्स हैं, अगर इसके लिए भी हम अगर एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट लाने का प्रयास करेंगे तो एक रिजिड फॉर्म हो जाएगा। कई बार चीज़ें डायनामिक होती हैं, चीज़ें बहुत फास्टली करनी होती है। पार्लियामेंट आपको पता होगा हर समय 24 घंटे तो नहीं बैठी रहती, भाई सुबह शाम बैठी हुई है, साल के 365 दिन बैठी हुई है, ऐसा तो होता नहीं है। दे हैव सम सेशंस, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, समर बजट सेशन, ऐसे 3 या 4 सेशंस होते हैं उनके, और बीच में फिर गैप होता है। अगर हमको अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे या तो उन अमेंडमेंट्स को वेट करना पड़ेगा जब तक सेशन या बहुत जल्दी जल्दी सेशंस कॉल करना पड़ेगा, तो इट वुड बी वेरी कम्बरसम और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करने पड़ सकते हैं, बहुत सारी दिक्कत आ सकती हैं। तो लॉ मेकर्स ने क्या सोचा कि साथ में इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स बना दिए जाएं। इनकम टैक्स एक्ट में बेसिक प्रोविजन, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो लिख दिए जाएं, और जो कंप्यूटेशनल मशीनरी से संबंधित हैं या प्रोसीजरल मशीनरी से संबंधित हैं वो डेलीगेट कर दिए जाएं। ओके, जो पावर कॉन्स्टिट्यूशनल ने पार्लियामेंट को डेलीगेट की, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को डेलीगेट की, अब पार्लियामेंट ने उसमें से कुछ पावर, कंप्यूटेशन की पावर, सारी पावर नहीं, कुछ पावर इनकम टैक्स रूल्स के लिए, इनकम टैक्स बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दी। दैट इज कॉल्ड सब लेजिस्लेशन। ठीक है, अब ये सब लेजिस्लेशन की बात आ गई, लेकिन अगर इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स में कभी भी डिफरेंस होगा तो व्हाट विल बी फॉलो, वी विल फॉलो इनकम टैक्स एक्ट। ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल नोटिफाई कर दिया जिसका सोर्स इनकम टैक्स एक्ट में नहीं था, ठीक है, कि उसमें वहां उस सेक्शन में, सपोज सेक्शन 17 में बोल लिया है, सेक्शन 17 इज अबाउट द सैलरी, उन्होंने कहा परक्विजिट कैलकुलेट करने के लिए हम, उन्होंने कोई रूल नोटिफाई कर दिया। अब वो जो रूल नोटिफाई किया उसके लिए सेक्शन 17 में पावर ही नहीं दी गई थी सपोज, तो वो रूल वुड नॉट बी इफेक्टिव। पावर कहां से आनी चाहिए थी, इनकम टैक्स एक्ट से आनी चाहिए थी। ठीक है, तो नाउ वी आर क्लियर विद द 2 बेसिक अथॉरिटीज ऑफ लॉ, इनकम टैक्स एक्ट एंड इनकम टैक्स रूल्स। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर, विच आई वुड बी रेफरिंग एज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अगर वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्शन लेना मांगता है तो उस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को या तो इनकम टैक्स एक्ट में लिखी होनी चाहिए बात, या इनकम टैक्स रूल्स में लिखी होनी चाहिए। तीसरी चीज है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। ठीक है, अब हमने इनकम टैक्स रूल की बात करी, तो उनने सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे नोटिफाई करेगी, वो नोटिफिकेशंस के थ्रू इनकम टैक्स रूल्स को नोटिफाई करेगी कि भाई ये इनकम टैक्स रूल्स हैं, अगर आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप इस तरह कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है आप इस तरह करेंगे, आपको अपील फाइल करनी है तो अपील का फॉर्म, ITR फाइल करनी है तो उसका फॉर्म, वो सब नोटिफिकेशन में जो रूल्स के थ्रू आते हैं वो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ऑब्वियसली थ्रू इट्स बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब ये सर्कुलर्स क्या चीज़ है, ये ध्यान रखने वाली बात है। सर्कुलर्स क्या होती है, CBDT सर्कुलर्स इशू करती है। किस लिए इशू करती है CBDT, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंटेंशियस इशू है कि भाई डिबेट चल रही है कि भाई इस सेक्शन में डिडक्शन मिलनी चाहिए, ये इनकम मानी जानी चाहिए या नहीं मानी जानी चाहिए, ये अलायंस एक्सपेंडिचर का दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये प्रोविजन को कैसे इंटरप्रेट करें, तभी तो कोर्ट में किया जाता है, और वो कोर्ट में नहीं गया हुआ तो क्या विम्स एंड फैंसीज के लिए छोड़ दें कि भाई एक अफसर कहेगा ये इनकम है, एक अफसर कहेगा ये इनकम नहीं है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है
कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है तो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी अफसर्स होमोजीनियसली अप्लाई करेंगे, ये भी तो रूल ऑफ लॉ है। नहीं तो कहेगा एक व्यक्ति के लिए इनकम है, एक व्यक्ति के लिए इनकम नहीं है, ये क्या बात हो गई। तो फैक्ट्स अगर अलग अलग हैं तो बात ठीक है, लेकिन अगर फैक्ट सेम है, एक अफसर कहता है नहीं जी मेरा विवेक, माई जूरिस्प्रूडेंस, माई इंटेलिजेंशिया सेज नहीं दिस इज नॉट एन इनकम, बट दूसरा कहता है नहीं सर दिस इज एन इनकम, ये है, इस तरह से इनकम है। तो उनकी गाइडेंस के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर्स की गाइडेंस के लिए सीबीडीटी सर्कुलर्स इशू करती है फॉर द पर्पस ऑफ गाइडेंस, और वो जनरल पब्लिक के पर्पस के लिए भी देती है कि भाई अगर आपको अपना कोई भी टैक्स का मैटर लेना है तो सीबीडीटी ने एक गाइडेंस सर्कुलर इशू कर रखा है, हम अपना स्टैंड ये लेंगे। या कई बार सर्कुलर्स कब इशू करने होते हैं, जब उन्हें कोई रिलीफ देना होता है। रिलीफ की पावर भी हम पढ़ेंगे जब हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में बात करेंगे, चैप्टर जब हम इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ का पढ़ेंगे तो सीबीडीटी की पावर के बारे में बात करेंगे। वो कहते हैं कि अगर कोई इनकम टैक्स एक्ट का कोई प्रोविजन इतना हार्श हो जा रहा है कि जो उन्हें कोई लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि या बोर्ड को लगता है कि भाई कोई रिलीफ दिया जाना चाहिए, दे कैन डू सो बाय एक्सरसाइजिंग देयर पावर अंडर सेक्शन 119 2 क्लॉज बी, और वो रिलीफ दे सकते हैं। तो सर्कुलर्स किस लिए इशू करते हैं, सर्कुलर्स हम ऑफिसर्स की गाइडेंस के लिए करते हैं, सर्कुलर्स हम इसलिए भी इशू कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग सर्टेन रिलीफ्स। ऑलराइट, हम रिलीफ देने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या ये सर्कुलर्स बाइंडिंग होते हैं? हाँ, ये सर्कुलर्स ऑफिसर्स के लिए बाइंडिंग होते हैं, बाइंडिंग ऑन ऑफिसर्स, लेकिन ये कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। ऑलराइट, ये सब ऑफिसर्स पे बाइंडिंग होते हैं लेकिन कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। वेरी मच क्लियर? ओके, क्यों कोर्ट्स के ऊपर क्यों बाइंडिंग नहीं होते? इसलिए बाइंडिंग नहीं होते बिकॉज वो एक अथॉरिटी का व्यू है, वो लॉ नहीं है। अगर किसी मुद्दे पे ये विवाद था, इट वॉज अ कंटेंशन कि रेवेन्यू ये कह रहा था, रेवेन्यू का एक बिलीफ है दिस इज एन इनकम, एसएससी कह रहा है सर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट इस तरह अगर हम करेंगे तो इस तरह करने से वो इनकम नहीं है। अगर कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाएंगे सर्कुलर तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा? आपने लॉ में देखा होगा वो आंख की अंधी होती है और तराजू बराबर होना चाहिए, पल्ला किसका भारी होना चाहिए? अगर बराबर होना चाहिए किसी, तो अगर कोर्ट्स के सामने हम आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो जब कोर्ट के सामने रेवेन्यू भी एक पार्टी है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट इज, मतलब स्टेट मींस आर्टिकल 12 में स्टेट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, वो भी एक पार्टी है, और हम एज ए लिटिगेंट, हम एज एन अपीलेंट, हम एज एन एसएससी, हम भी एक पार्टी हैं। और अगर कोर्ट्स सिर्फ रेवेन्यू का वो सर्कुलर को बाइंडिंग बनाते हुए हम पे एक टैक्स की लेवी थोप देते हैं या टैक्स की लेवी लगा देते हैं, वेदर इट वुड बी वैलिड इन लॉ? एक तरफ को ज्यादा फेवर हो गया ना, डिपार्टमेंट को ज्यादा फेवर हो गया ना, इसलिए दीज उस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन दी कोर्ट्स। लेकिन जब भी बात आती है सर्कुलर्स अगर बेनिफिशियल है, सर्कुलर अगर बेनिफिशियल है तो वो उसका बेनिफिट दिया जाना चाहिए, कोर्ट्स उसका बेनिफिट जनरली एसएससी को देते हैं बिकॉज इट इज बेनिफिशियल टू द एसएससी। अब डिपार्टमेंट ने एक व्यू ले लिया तो द ऑफिसर्स आर बाउंड बाय दैट व्यू। ऑलराइट, सो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, अभी पहले उससे पहले कॉन्फ्लिक्ट से पहले हम समझ लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से राइज होगा। हमने तीसरी बात करी केस लॉज, हम सर्कुलर्स के बारे में बात कर चुके, हम केस लॉज के बारे में बात करेंगे। तो केस लॉज के बारे में हम क्या बात करेंगे? केस लॉज होते क्या हैं? केस लॉज होते हैं डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। आर्टिकल 141, अरे सर आप तो बहुत सारे आर्टिकल पढ़ा रहे हो, सर हमें सेक्शन याद नहीं रहते, हमें आर्टिकल कैसे याद रहेंगे? अरे बेटा मैं सेक्शन और आर्टिकल याद करने की बात ही नहीं करता। सेक्शन और आर्टिकल नंबर याद हो या ना हो, उनके अंदर का जो क्रक्स है, उनके अंदर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो याद होने चाहिए। और सेक्शंस और आर्टिकल आप बार बार पढ़ेंगे। अपने यहाँ एक मैं आपको तरीका भी बता दूंगा, जैसे जैसे हम सैलरी का चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम
और बाकी चैप्टर्स पढ़ेंगे। डिफिकल्ट सेक्शंस को याद रखने के लिए, मतलब डिफिकल्ट मीन्स इंपॉर्टेंट सेक्शंस को याद रखने के लिए जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन सेक्शंस को याद रखने के लिए एक माइंड मैप भी बनवा देंगे। उस माइंड मैप को आप अपने टेबल के सामने लगा लीजिएगा और उसको देख के आप पढ़िएगा। सेक्शंस भी याद हो जाएंगे, आर्टिकल्स भी याद हो जाएंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। आर्टिकल 141 क्या कहता है? आर्टिकल 141 सिर्फ इतना बात कहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, रिमेंबर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, दैट वुड बी बाउंड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, वो जो डिसीजन है दैट वुड बी बाउंड, ऑल ऑफिसर्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट वुड बी बाउंड बाय दिस decision of the honorable supreme court. This is given under section article 141. हम दूसरी बात क्या करते हैं? That is rule of precedents. Okay, what is the rule of precedents? Rule of precedents क्या कहता है कि अगर हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है तो हाई कोर्ट का डिसीजन उसकी ही जुरिस्डिक्शन में वैलिड माना जाएगा। वो दूसरी, अगर सपोज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर जो स्टेट की जुरिस्डिक्शन आती है या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो यूपी की जुरिस्डिक्शन आती है, सिर्फ उतने पे ही वैलिड होगा। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर है हरियाणा का, तो वो हरियाणा का जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो कोई दूसरा व्यू लेना मांगता है, वो दूसरा व्यू ले सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट। क्या क्लियर? केस लॉज इज द रूल ऑफ प्रेसिडेंट। और रूल ऑफ प्रेसिडेंट क्या कहता है? जुडिशियल डिसिप्लिन क्या कहता है? जुडिशियल डिसिप्लिन सिर्फ ये कहता है कि जो आपके हायर अथॉरिटीज के केस लॉज हैं भाई, है ना, जो हायर अथॉरिटीज के जो डिसीजंस हैं, जो हायर अथॉरिटीज की लॉजिक एंड रीजनिंग है, आप उन लॉजिक्स और रीजनिंग को फॉलो करिए। वो फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दैट इज अबाउट द केस लॉज। ऑलराइट, नाउ अब क्या हुआ? एक 3 मेंबर बेंच थी। ओके, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, वो 3 मेंबर बेंच ने एक डिसीजन दिया कि भाई दिस इनकम इज टैक्सेबल। एक किस टाइम को? सपोज मान लीजिए 2011 में, हाइपोथेटिकल ले रहा हूं मैं एक की सिचुएशन, और एक 2 मेंबर बेंच थी। 2 मेंबर 2 जज साहब थे, meaning thereby there was 2 judges on the bench, or 3 member bench means there were 3 judges on the bench, and it is the decision of the honorable supreme court. ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, इसमें कहा टैक्सेबल है। इन 2 मेंबर बेंच ने कहा इट इज नॉन टैक्सेबल। ठीक है, इन 2015 उन्होंने इस 3 मेंबर जज बेंच के डिसीजन को फॉलो नहीं किया। क्यों? या तो डिस्टिंग्विश किया होता, लेकिन उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया। उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया, लेकिन उसको नोटिस भी नहीं किया। दैट वॉज नॉट नोटिस्ड। नोटिस कैसे नहीं किया? अगर ना ही अपेलेंट ने ना ही रिस्पोंडेंट ने। अपेलेंट मीन्स जो वादी है, रिस्पोंडेंट मीन्स जो उसका जवाब देने के लिए जिसके ऊपर नोटिस सर्व किया गया, भाई अब जवाब दीजिए, अपेलेंट ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों में से किसी पार्टी ने, नाइदर द अपेलेंट नाइदर द रिस्पोंडेंट, ब्रॉट द डिसीजन ऑफ दिस 3 मेंबर बेंच टू द नोटिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, और उन्होंने ये पास कर दिया। अब नाउ इन 2020 द मैटर, दिस सेम इशू इज बिफोर एन असेसिंग ऑफिसर इन द सिटी ऑफ दिल्ली। Whether in this city of Delhi this assessing officer would be bound by this 2011 decision or 2015 decision? Which decision will be followed? Comment box में बताइए, फटाफट बताइए, which decision will you follow? 2011 और 2015? बताइए बताइए। Yes, सही पकड़े हैं। You will follow 2011 decision. क्यों? Because it is a 3 member decision and this is a 2 member decision, and 2 member decisions not following a 3 member decision would be held as per incurium. What is this? Per incurium. All right. So
इट विल बी हेल्ड एज पर इनक्रीमेंट। तो हमें 3 मेंबर बेंच का डिसीजन फॉलो करना है। वी विल बी फॉलोइंग अ 3 मेंबर बेंच डिसीजन। ऑलराइट, नाउ वी शैल बी फॉलोइंग अ 3 मेंबर बेंच डिसीजन। अब व्हाट हैपेंड, ये भी 2 मेंबर बेंच का है, ये भी 2 मेंबर बेंच का है। कोऑर्डिनेट बेंच जिसे हम कहते हैं, कोऑर्डिनेट बेंच का है, ठीक है, सेम अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट। इसका डिसीजन सेम फैक्ट्स पे कि एक्स इज टैक्सेबल, एक्स इनकम इज टैक्सेबल। इनका क्या डिसीजन है, एक्स इनकम इज नो टैक्सेबल। ईयर 2011, हियर 2015। सो विच डिसीजन इन 2020 दिस AO would follow? This AO would follow this 2011 or 2015. This AO would be bound to follow 2011 decision. Why? Because it is a coordinate bench decision, and 2015 in this 2-judge bench did not notice that earlier decision, which is a violation of principle of judicial discipline. उस प्रिंसिपल का वायलेशन है, इसलिए the AO would, this decision would be called as not valid in law. This would be rendered as invalid, and the AO would be bound by 2011 decisions. यहाँ पे भी कुछ डिस्प्यूट्स अभी भी चल रहे हैं। कई हाई कोर्ट्स का मानना है कि लेटर इन पॉइंट वाले को माना जाना चाहिए, 2011 वाले को नहीं माना जाना चाहिए। बट आई एम ऑफ द फर्म बिलीव, आई हैड सर्टेन बैकिंग विद मी ऑफ वेरियस जुडिशियल केस लॉज, जिनमें कहा गया है कि 2011 वाला डिसीजन ही माना जाएगा। अगर 2015 में उनको लग रहा था कि 2011 में जो डिसीजन आया है दैट वाज इनवैलिड, अगर वो सही नहीं है तो क्या करना था, अगर सही नहीं है तो दे शुड हैव रेफर्ड द मैटर टू ए हायर बेंच, या तो यहाँ पे खुद ही हायर बेंच बनती, देन दे वुड नॉट बी बाउंड बाय द 2 मेंबर बेंच। वो अपने आप ही उस डिसीजन को कंसिडर करें या ना करें, दैट वुड हैव बीन फॉलोड। लेकिन 2 मेंबर बेंच है, कोऑर्डिनेट बेंच है, तो दे शुड हैव रेफर्ड द मैटर टू ए हायर बेंच, और दे शुड हैव डिस्टिंग्विश्ड द प्रीवियस डिसीजन। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो ये सब कहानी हो गई कि भाई ये नया वाला बेकार हो गया और 2011 वाला ही वैलिड माना जाएगा, और सभी को वही फॉलो करना होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट 2015 वाला डिसीजन रिकॉल या रिव्यू नहीं कर लेता। ऑलराइट, नाउ द फाइनल पार्ट, दैट इज द फाइनेंस एक्ट। जैसे हमने जाना फाइनेंस एक्ट के शेड्यूल में रेट्स डिफाइंड है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 1 में करंट असेसमेंट ईयर, उसके लिए टैक्स रेट डिफाइन होते हैं। अभी असेसमेंट ईयर ऐसे ही याद रख लीजिए, अभी हम नीचे पढ़ेंगे असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। अभी हम ऐसे समझ लेते हैं असेसमेंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है। चलिए अभी समझा देते हैं, तो इसको हम समझने में आसानी हो जाती है। असेसमेंट ईयर क्या है, उससे पहले जानते हैं प्रीवियस ईयर क्या है। दिस प्रीवियस ईयर, आप देख पा रहे हैं, दिस इज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, सपोज हमने इनकम अर्न करी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। द ईयर ऑफ अर्निंग ऑफ इनकम वॉज 1 अप्रैल 2022, 31 March 2021. So this would be previous year 2020 to 2021. All right, and the assessment year would be 2021 to 2022. Assessment year is always the next year in which the income has been earned, which we shall be doing again when we will be discussing the definition and section 4. So for now we should remember that previous year is the year in which income has been earned by the assessee. Assessee meaning there by the person. अगर मैं व्यक्ति assessable under this act हूँ, तो इनकम जो मैंने अर्न करी है इस पीरियड में, जिस पीरियड में मैंने इनकम अर्न करी है उसे हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं।
आई वुड राइट इट पी वाई इन शॉर्ट। और ए वाई का मतलब जिस ईयर में मुझे उस इनकम पे टैक्स देना है, फाइनल टैक्स। टैक्स तो मुझे प्रीवियस ईयर के दौरान भी देना हो सकता है, बट जो फाइनल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स होती है वो कब होती है, असेसमेंट ईयर में। दैट असेसमेंट ईयर इज 2021 एंड 2022। तो जो मुझे प्रीवियस ईयर 2020 या 2021 की इनकम पे जो मुझे टैक्स देना होगा वो कौन से रेट से डिफाइंड होगा, वो डिफाइंड होंगे जो टैक्स रेट 1 अप्रैल 2021, रिमेंबर प्रीवियस ईयर वॉज 2020 टू 2021, जो टैक्स रेट 1 अप्रैल 2021 को होंगे उसी टैक्स रेट के ऊपर हमें टैक्स देना होगा 1 अप्रैल को। एंड दैट इज 21-22 इज असेसमेंट ईयर। और वो रेट्स कहां दिया होते हैं, फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में। फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 में असेसमेंट ईयर में वो दिए रहते हैं, ठीक है, करंट ईयर। पार्ट 2 में टीडीएस के रेट्स डिफाइंड होते हैं। टीडीएस के रेट्स किसके लिए डिफाइंड होते हैं, वो प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। पार्ट 1 जो सपोज दिस इज असेसमेंट ईयर, अभी कौन सा, आज की डेट क्या है, आज की डेट है 10 अगस्त 2020, मान लीजिए, है तो नहीं, मान लीजिए टुडे इज 10 अगस्त 2020। तो कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, इट इज असेसमेंट ईयर 2020 एंड 2021, दिस इज द असेसमेंट ईयर। एंड प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, 2020 टू असेसमेंट 2021। तो ये प्रीवियस ईयर जो चल रहा है असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर होगा, 2019 टू 2020। इसके लिए क्या असेसमेंट ईयर होगा, इसके लिए असेसमेंट ईयर होगा 2021 टू 2022। तो जो पार्ट 1 में रेट्स डिफाइंड होंगे, पार्ट 1 में जो रेट डिफाइंड होंगे वो किसके लिए होंगे, कौन से एक्ट में, अगर हम फाइनेंस एक्ट 2020 की बात करेंगे, फाइनेंस एक्ट 2020 में पार्ट 1 में किसके लिए रेट डिफाइंड होंगे, असेसमेंट ईयर 2020-2021। मीनिंग देयर बाय जो इनकम हमने फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर 1920 में कमाई थी, उस 1920 में जो कमाई थी उसके रेट्स हमें पार्ट 1 में मिलेंगे। और पार्ट 2 में क्या, जो इनकम हम, टीडीएस क्या होता है, टैक्स एट सोर्स। जब हम टीडीएस वाला चैप्टर करेंगे वहां और क्लियर हो जाएगा। टीडीएस मीनिंग देयर बाय टैक्स एट सोर्स। ये जो टैक्स एट सोर्स है, जो टैक्स जब हम इनकम कमाते जाते हैं उसी समय कटते जाता है। आपको इंटरेस्ट मिला तो आपके मम्मी पापा जब इंटरेस्ट मिलता होगा तो कहते होंगे वहां से बैंक वाले हमें फॉर्म 16 देंगे। इस फॉर्म 16 में ही वो कुछ पैसे 10%, 7.5% डिपेंडिंग अपॉन द रेट्स गिवन इन दिस पार्ट 2, वो उस रेट के हिसाब से काट लेते हैं। एक्ट में भी दिए हुए हैं और पार्ट 2 में भी वो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है टीडीएस के रेट्स, सैलरी पे कितना टीडीएस कटना है, बाकी हेड्स ऑफ इनकम में अगर कोई इनकम होती है, इंटरेस्ट की इनकम होती है, लॉटरी की इनकम होती है या और कोई इनकम होती है जिसपे टीडीएस कटना चाहिए, तो वो यहाँ इस पार्ट 2 में डिफाइन करे जाते हैं। ये किसके लिए होंगे, क्या ये फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए होंगे फाइनेंस एक्ट 2020 में, नहीं। पार्ट 2 में ये रेट्स प्रीवियस ईयर 2020-2021 के लिए होंगे। ध्यान रहे ये असेसमेंट ईयर 2020-2021 है और ये प्रीवियस ईयर 2020-2021 है, दोनों में फर्क है, ठीक है। असेसमेंट ईयर में मतलब पिछले साल वाली इनकम, प्रीवियस ईयर में मतलब इस साल वाली इनकम। ऐसी पार्ट 3 में एडवांस टैक्स के लिए रेट्स डिफाइन करे जाएंगे। ये जो पार्ट 3 है फाइनेंस एक्ट 2020 का, ये फाइनेंस एक्ट 2021 का पार्ट 1 बन जाएगा। जब नेक्स्ट ईयर बजट आएगा तो ये पार्ट 1 बन जाएगा। अगर गवर्नमेंट कोई मॉडिफिकेशन नहीं लाती है तो ये पार्ट 1 बन जाएगा। पार्ट 4 क्या है, व्हाट इज दिस पार्ट 4? पार्ट 4 में अगर हम एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो पार्शियल इंटीग्रेशन का मेथड है, वो पार्शियल इंटीग्रेशन का मेथड यहां पे समझाया गया है, दैट इज पार्शियल इंटीग्रेशन। ऑलराइट, तो हमने जान लिया सोर्स ऑफ लॉ। अब आप मुझे रिपीट करके बताएंगे सब, सोर्स ऑफ लॉ क्या है?
सबसे पहला इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा इनकम टैक्स रूल्स, तीसरा सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन, चौथा फाइनेंस एक्ट, पांचवा केस लॉज। हमने जब बात करी फाइनेंस एक्ट की तो हमने पार्ट्स की बात कर ली, हमने बात कर ली फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट होते हैं। सर क्या सारे ही के सारे जो लेवी हैं, क्या सारे के सारा लेवी, सारा का सारा चार्ट, सारा टैक्स सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में ही डिफाइंड है? हमें इनकम टैक्स एक्ट के बाहर किसी भी सेक्शन के लिए देखना ही नहीं है। द आंसर इज नो। फाइनेंस एक्ट में, अब आप जानेंगे, फाइनेंस एक्ट में इटसेल्फ ही इक्वलाइजेशन लेवी लाई गई है। ओके, अब आप फाइनेंस एक्ट में ही इक्वलाइजेशन लेवी लाए हैं। ये इनकम टैक्स एक्ट में कहीं नहीं लिखा इक्वलाइजेशन लेवी। तो सर क्या ये जो इक्वलाइजेशन लेवी क्या है? इट इज 6%। जब ई कॉमर्स की कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उसे पढ़ेंगे, जब हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, और या हम फॉरेन इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो इस इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में भी हम बात करेंगे। अभी मोटा मोटी ये जान लीजिए, ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है ये इनकम टैक्स एक्ट में नहीं, फाइनेंस एक्ट में डिफाइंड है, फाइनेंस एक्ट में ही इसका चार्ज है। तो ये जो चार्ज, तो फाइनेंस एक्ट सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट के लिए रेट्स ही नहीं बताता, इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड ही नहीं करता, ये एक चार्जिंग, एक नया चार्ज भी क्रिएट करता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? क्या फाइनेंस एक्ट और क्या करता है? हमने क्या बताया था? रेट्स बता दिए हमने क्या बता दिए? अमेंड करता है, अमेंडिंग लॉ है। तो ये 3 चीज हमें ध्यान रखने वाली हैं कि फाइनेंस एक्ट इज नॉट मेनली एन अमेंडिंग और रेट गिविंग एक्ट, वो इक्वलाइजेशन लेवी और उसका प्रोसीजर डिफाइन करने वाला भी है। और इनकम टैक्स एक्ट कैसे अमेंड किया जा सकता है? वी मस्ट बी रिमेंबर, फाइनेंस एक्ट के थ्रू भी अमेंड किया जा सकता है, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी अमेंड किया जा सकता है, और ऑर्डिनेंस के थ्रू भी अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, हाउ वी कैन अमेंड? अमेंड मतलब कोई फेरबदल करना है। हम रूल्स कैसे एक्ट के रूल्स को क्या कर सकते, कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं? हम रूल्स को सर्कुलर्स के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू हम अमेंड कर सकते हैं। सर्कुलर से तो हम जल्दी करते नहीं हैं, हम नोटिफिकेशन के थ्रू अमेंड करते हैं। ठीक है, ये बात ये हो गई। तो आपने देखा होगा जब मैं पार्ट 1 समझा रहा था तो वो क्या कहता है? नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, फाइनेंस एक्ट 2020 की ही बात करते हैं। टेक इट, फाइनेंस एक्ट 2020। ठीक है, इसके पार्ट 3 में कौन से साल की इनकम के टैक्स बताया जाएगा? टेल मी। पार्ट 3 में फर्स्ट शेड्यूल ऑफ में जो पार्ट 3 है उसमें कौन से साल के ऊपर टैक्स बताया जाएगा? उसमें प्रीवियस ईयर 2020, 21 के बारे में बताया जाएगा। यानी कि ये जो लॉ है दैट इज फॉर 1 अप्रैल 2021 का है, जो कि ये कब क्या बन जाएगा? अगले साल फाइनेंस एक्ट 2021 का पार्ट 1 बन जाएगा। दैट इज फाइन। अब क्या हुआ? सपोज टैक्सेशन लॉ आ गया, टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ लिया ही गवर्नमेंट। ओके, ये टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ लिया ही जो गवर्नमेंट, इस टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ कब लाई? 2020 में। किस तारीख को लाई? सपोज मान लीजिए आज ही की तारीख को ले आई। ठीक है, ये आज ही की तारीख को ले आई, तो वेदर दिस वुड बी एप्लीकेबल, दिस वुड बी एप्लीकेबल फॉर इनकम अर्नड, इसके बीच में जो इनकम अर्न करी गई है 1 अप्रैल 2020 से लेके 10 अगस्त 2020 तक, क्या ये मानी जाएगी?
क्या ये जो अमेंडमेंट लाया गया है, क्या इस दौरान जो इनकम अर्न करी गई है, इस दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे गए हैं, क्या उन पे भी ये एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज, अगर एक्ट में कहीं नहीं लिखा, अगर इस अमेंडमेंट एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा, कहीं पे भी एक्सक्लूजन नहीं है, कहीं पे भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, दिस वुड बी एप्लीकेबल। वाई? बिकॉज ये जो पार्ट, दिस वुड बिकम पार्ट ऑफ पार्ट 1 एंड दिस पार्ट 1 डिफाइंस रेट फॉर 1 अप्रैल 2021। जब पार्ट 1 का पार्ट बन जाएगा तो दिस वुड बी द रेट्स ऑन 1 अप्रैल 2021 एंड rates as on 1st April 2021 is applicable for the whole year. Okay, whole year meaning 1st April 2020 to 31st March 2021. ये सर आप हमें अभी क्यों पढ़ा रहे हो सर? सर ये क्या है, समझ में नहीं आया सर, ये क्यों पढ़ा रहे हो सर? ये रेट्स का क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदा होगा सर? सर सीधा सीधा कह देते, कोई भी अमेंडमेंट हो, कुछ भी हो, पार्ट 1 वाले रेट जिस दिन एप्लीकेबल हो सब लगेगा। इसलिए लगेगा कि व्हेन आई विल बी टेकिंग यू थ्रू सेक्शन 68 to section 69D read with section 115 BBE, ये डिस्कशन वहां भी काम आएगा। रिमेंबर कर लीजिए, अपनी नोटबुक में स्टार लगा लीजिए। सेक्शन 68 to 69D आज के लेक्चर में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, लेकिन जब हम सारे हेड्स ऑफ इनकम खत्म कर चुके होंगे, असेसमेंट ऑफ एंटिटीज कर रहे होंगे, उस समय जब हम कुछ थ्योरीज का डिस्कशन करेंगे, पीक थ्योरी, टेलीस्कोपिंग वगैरह की जब हम बात करेंगे, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत मदद करेगी, उस समय जो हम बात करेंगे सेक्शन 68 to 69 का डिस्कशन करेंगे, तो हम उसके स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेशन जो लाया गया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये क्या था एक्ट में, जिस समय सेक्शन 150 डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस समय सेक्शन 115 BBE आपको सुना होगा, सब जगह ह्यू एंड क्राई हो गया। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि ये नोट्स अब डिमोनेटाइज, तो लोगों ने कहा ठीक है डिमोनेटाइज हो गए, कोई बात नहीं। उन्होंने वॉलेंट्री इनकम डिस्क्लोजर VIDS लेके आए थे, जिसमें 45% का टैक्स रेट दिया था। उन्होंने कोई बात नहीं, सभी सीएस ने कहा कोई बात नहीं, अब हम 115 BBE में खुद डिक्लेयर कर देंगे कि अनएक्सप्लेन्ड है और 30% का टैक्स दे देंगे। हमने नहीं किया वॉलंटरी इनकम डिस्क्लोजर में 45%, हम अब 30% कर देते हैं। तो सरकार ने क्या कहा, क्योंकि 115 BBE में अनएक्सप्लेन्ड, कि हमें नहीं पता इसका सोर्स कहाँ से आया है, नहीं हम नहीं बता सकते कहाँ से पैसे आए, हम नहीं बता सकते प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी की तो बात ही नहीं, उस समय कैश की बात चल रही थी इतनी, ठीक है। तो वैसे 115 BBE प्रॉपर्टी पे भी लगता है, गोल्ड पे भी लगता है, बुलियंस पे भी लगता है, मनी पे भी लगता है, बैंक डिपॉजिट पे भी लगता है, सब जगह लगता है, जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर मींस द इनकम टैक्स ऑफिसर। 30% का रेट था, सभी चीज़ ने कहा 30% है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। दे ब्रॉट इन टैक्सेशन ऑर्डिनेंस, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉ, अमेंडमेंट लॉ। अगर वो वैलिडेशन लॉ लेकर आते तो वो रेट्रोस्पेक्टिव भी लग जाता, कोई बात नहीं, लेकिन वो सिर्फ टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेकर आए 2016। अब क्या करा, उसमें क्या करा, इस 30% के जगह 60% कर दिया रेट, ठीक है। अब इसके वजह 30% की वजह 60% कर दिया रेट इन द इनकम टैक्स एक्ट। ध्यान रहे, ये फाइनेंस एक्ट में भी नहीं दिया था, ओके, ये फाइनेंस एक्ट में भी नहीं दिया था। सेक्शन 115 BBE पार्ट 1 का पार्ट नहीं था। ऑन 1 अप्रैल 2017, क्यों? इनकम किस साल की थी? डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? नवंबर 2016 में। तो इनकम किस साल की थी? 2016-17, जिसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है? असेसमेंट ईयर इज 17-18। तो लॉ कब का एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल 2017। तो क्या ये जो 60% का रेट है ये हमारे लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? बताइए डियर स्टूडेंट्स, राइट इन द कमेंट बॉक्स। मैंने आपको अभी समझाया था कि जो 1 अप्रैल का लॉ लगेगा तो क्या इस इनकम को डिमोनेटाइज्ड इनकम पे 30% का रेट लगना चाहिए था या 60% का?
जिस समय बैंक में डिपॉजिट हुआ उस समय 30% का रेट एप्लीकेबल था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर को ये अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया। 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2016 को ये अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया। तो जिस समय ये एक्ट पास हुआ उस समय 60% का लॉ था, और जिस समय हमने बैंक डिपॉजिट करा उस समय ये 30% का लॉ था। तो विच वुड बी एप्लीकेबल, क्या एप्लीकेबल होगा? राइट इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट सभी बच्चे फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या एप्लीकेबल होगा। यस, सही पकड़े हैं, 60% would be applicable because the law as on 1st of April 2017 was required to be seen। तो सभी लोग ध्यान रखें। अब आप बिल्कुल बेसिक्स को अगर हम पकड़ के बैठेंगे तो हमें इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी नहीं हरा सकता। इंस्टीट्यूट हो, प्रैक्टिकल लाइफ हो, कोई भी टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन पूछे हम सब बता देंगे। ओके सब हमने सोर्स ऑफ लॉ के बारे में जान लिया। अब हम थोड़ा सा और बेसिक्स करते हैं, एक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक्ट का टाइटल क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एक्ट हो गया। उसमें चैप्टर्स डिफाइंड हैं, जैसे हमारी किताब में चैप्टर्स होते हैं ऐसे इनकम टैक्स एक्ट में भी चैप्टर्स डिफाइंड हैं। कैसे चैप्टर्स डिफाइंड हैं कि भाई ये सैलरी का चैप्टर है, ये पीजीबीपी का चैप्टर है, ऐसे उन्होंने ही कई सेक्शंस की क्लबिंग कर रखी है, सेक्शंस को क्लब कर रखा है, उनको कहते हैं चैप्टर्स। ठीक है, दूसरा शेड्यूल है जो कि एक्ट का ही पार्ट है, जिसमें कई सारे अदर मैटर्स जो हमने कहा कि आप इसको गवर्न करें। जैसे हमने पीएफ रजिस्ट्रेशन की बात करी, हमने रूल्स में बात ही नहीं करी, रूल्स में जाना है। हमने कहा शेड्यूल में जो मेथड प्रिस्क्राइब्ड है उसको देख लीजिए। रूल्स तो हमने बात किया, लेकिन उन्होंने कहा एक्ट के बाहर ही क्यों जाना, हम शेड्यूल में ही बता देते हैं, रूल्स की बात नहीं करते हैं। तो कुछ चीज़ उन्होंने शेड्यूल्स में ही बता दी, जो उन्होंने कहा कि भाई हमें एक्ट के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, डेलीगेट करने की जरूरत नहीं है, शेड्यूल में ही हमने बता दी। दूसरी क्या बात करी हमने, वहीं सेक्शन में क्यों नहीं बताई? अगर हम इस सेक्शन में बता देते तो कम्बरसम हो जाती, समझाने में थोड़ी सी मुश्किल आती, इसलिए हमने उठाया और उनको शेड्यूल में डाल दिया। अब हम सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, शेड्यूल हमने जान लिया, अब हम सेक्शन को जानेंगे। सेक्शन क्या है? जैसे सेक्शन होता है, सेक्शन के बाद सब सेक्शन होता है, और उसमें क्लॉज होते हैं और सब क्लॉज होते हैं। ये तो लिखा है सर, अब हम क्या जान लेते हैं? अब सपोज वहाँ क्या लिखा है, सेक्शन 4 लिखा होता है या सेक्शन 10 लिखा रहता है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सेक्शन। अगर उसके ब्रैकेट में तुरंत 1 लिखा है, इट इज सब सेक्शन। ओके, और वैसे सेक्शन 10 में ऐसा नहीं लिखा। ठीक है, सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है कि इनकम रिसीव्ड शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, ऐसा लिखा है, और फिर लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये सेक्शन 10 तो सेक्शन है, लेकिन क्या हो गया? चल रहा, हम ये जो सेक्शन 10 है ये तो
सेक्शन है, लेकिन ये जो 1 है ये सेक्शन नहीं, ये क्लॉज है। क्यों? क्योंकि सेक्शन मैं आपके बताया, अगर सेक्शन जैसे लिखा सेक्शन 10 उसके बाद तुरंत 1 लिख गया तो ये सेक्शन हो गया, ये सब सेक्शन हो गया। लेकिन अगर सेक्शन नंबर लिखने के बाद एक प्रोविज़न लिखा गया है और उस प्रोविज़न के बाद ए या करा गया है या आई करा गया है या 1 करा गया है, तो ये क्या हो गए? क्लॉज हो गए। सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 10 के बाद कुछ प्रोविज़न के बारे में डिस्कशन है, फिर नंबर्स हैं 1 2 3, ये जो हैं ये क्या हो गए? क्लॉज हो गए। अब सर सब क्लॉज क्या है? जैसे हमने देखा एक 23C है, फिर उसके अंदर 3IAD है, AB है, तो ये क्या हो गया? 23C क्लॉज हो गया। और 3IAB क्या हो गया? ये सब क्लॉज हो गया। ओके, तो हमने ये जान लिया। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप ये हमारे एग्जाम से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है और ये बेसिक है, और हम जब सेक्शंस को रीड करेंगे एक्ट के थ्रू तब मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि ये एक्ट में सेक्शन है, क्लॉज है। मोटा मोटी हमने अभी जान लिया, ठीक है। अब हम रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में जानेंगे। क्यों? अब हमें इनकम टैक्स एक्ट को समझना है तो हमें कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये आपने जब लॉ इंटर में पढ़ेंगे, सीए इंटर में, सीएस एग्जीक्यूटिव में, CWA, जिस भी कोर्स में आप एनरोल्ड हैं, आप जिस भी कोर्स में एनरोल्ड हैं, आपके बेसिक लॉ में ये इंटरप्रिटेशंस के बारे में पढ़ाया जाता है। ये बेसिक इंटरप्रिटेशंस के बारे में। अब हम उसको बहुत जल्दी से, this is not concerned with the direct tax laws per se, but with this rules of interpretation, aids of interpretation is very important in analyzing the provisions of this act. So we will be in a very 10 minutes, in the next 10 minutes we shall be brushing up. What we shall be brushing up in next 10 minutes? We shall be brushing up this rules of interpretation. All right. Okay, what is this rules of interpretation? Rule of strict and literal interpretation. ये क्या कहता है? ये सिर्फ इतना कहता है कि जो प्रोविजन दिया गया है, इंटरप्रेट द प्रोविजन एज इट इज। कोई नहीं, कुछ मत सोचिए, जो लिखा है उसमें लिखा है इनकम टैक्सेबल है तो लेट इट बी टैक्स्ड। क्या पर्पस था, क्यों लाए गए, आप पर्पस को मत देखिए। आप पर्पस को मत देखिए, इंटेंशन को मत देखिए, आप कुछ मत देखिए, आप हार्डशिप को मत देखिए, आप इक्विटी को मत देखिए, आप बात समझ रहे हैं, आप फेयरनेस को मत देखिए। दीज थिंग्स आर, कोई जरूरत नहीं इन सबको देखने की। पहले वैसी बात है, जब हम टैक्स स्टैट्यूट को बात रीड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो कहते हैं इक्विटी और फेयरनेस जैसी किसी चीज़ को नहीं देखना। क्या मतलब? आप ये कह सकते हैं सर ये टैक्स अननेसेसरी लग रहा है। ना जी ना, आप इस एक व्यक्ति को टैक्स लगा रहे हैं, इस व्यक्ति को नहीं लगा रहे। आप कंपनीज के ऊपर टैक्स लगा रहे हो, आप इंडिविजुअल्स के केस में टैक्स नहीं लगा रहे। भाई नहीं लगा रहे तो नहीं लगा रहे। ये एक लेजिस्लेटिव डोमेन है, किस पे टैक्स लगाना किस पे नहीं लगाना वो उनका विवेक है। आप इक्विटी को डिस्क्रिमिनेटरी नेचर को, फलाने नेचर को इंपोर्ट नहीं कर सकते। टैक्सिंग स्टैट्यूट आर इंटरप्रेटेड लिटरली, जो लिखा है सो करना है। आपको इंटरप्रिटेशन के इसको लिटरल इंटरप्रिटेशन करना है। आपको ये नहीं कह सकते सर भाई हमें सर इक्विटी में गलत है, फेयरनेस में गलत है ना, इंटरप्रेटेड एज इट इज। अभी सर ये केस लो क्या दिया सर आपने, इस केस में क्या हुआ, इनकम नील थी, कुछ एक्सपेंडिचर करा था, ठीक है, तो वो उस एक्सपेंडिचर को क्लेम कर रहे थे कि भाई ये हमारा लॉस है और इसे मेरे अदर हेड्स की इनकम से, बाकी इस लॉस को मुझे अलाउ करो, इस लॉस के ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना।
और अगले साल अगर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तो हो सकता है, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, वट एवर द केस मे बी। तो क्या ये लॉस जो एक्सपेंडिचर है अलाउ होना चाहिए जबकि हमारी इनकम नील है? तो उन्होंने कहा कि भाई एक्ट को ऐसे ही पढ़ो। उन्होंने कहा कि एक्सपेंडिचर किस लिए इनकर किया, ये एक्सपेंडिचर आपने इसलिए इनकर किया ताकि इनकम अर्न कर सकें। यस और नो? आपने वेरीफाई किया हाँ ये आपने एक्सपेंडिचर इसलिए इनकर किया क्योंकि आप इनकम अर्न कर सकें, पर आपने इनकम क्या अर्न करी? नील। यू अर्न इनकम नील। तो क्या सिंस बिकॉज मेरी इनकम नील है तो एक्सपेंडिचर भी मुझे अलाउ नहीं होगा? द बेयर क्वेश्चन वॉज दिस। इनकम क्या होती है? इनकम की वजह अगर प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल करूं, इट इज नॉट इनकम, इट इज रिसिप्ट। इनकम क्या होती है मेरी? रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर इज माई इनकम। एंड व्हाट इज टैक्सेबल अंडर द एक्ट? इनकम, नॉट द रिसिप्ट। वो क्या कह रहे हैं कि आपकी सर रिसिप्ट तो नील है और एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर रहे हो, तो क्या आप इसे एक्सपेंडिचर को अलाउ कर सकते हैं विच इज मोर देन द इनकम? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सपेंडिचर was incurred for the purpose of earning that income when the income was itself nil? जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करेंगे, चैप्टर करेंगे, तब हम इस केस लॉ को दोबारा से रिविजिट करेंगे। तो इस केस में भी यही कहा गया दैट वी मस्ट इंटरप्रेट द प्रोविजंस लिटरली। और लिटरल इंटरप्रिटेशन कहते हैं चाहे इनकम नील भी सही वो आपको एक्सपेंडिचर अलाउ करना पड़ेगा। लेकिन क्या सर हर केस में ऐसा करना होगा? द आंसर इज नो। हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। हाँ हमें कब करना होगा? क्या एक्सेप्शंस हैं? When the provisions which merely lays down the machinery provision, अगर वो सिर्फ मशीनरी प्रोविजंस है। मशीनरी प्रोविजंस क्या कहते हैं? हमने पहले बार में बताया था, एक होता है चार्जिंग प्रोविजन। तो कहते हैं अगर चार्जिंग प्रोविजन है, डीमिंग प्रोविजन है, तो उसको एज इट इज ही पढ़िए, लिटरली ही पढ़िए। लेकिन अगर वो मशीनरी प्रोविजन है तो क्या हमें उसे लिटरली पढ़ना चाहिए? उन्होंने कहा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दीजिए? लिटरल इंटरप्रिटेशन को दीजिए। लेकिन अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन की वजह से आंसर जो इंटेंशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही है, वो इनकम वो कंप्यूट नहीं करी जा रही है, वो इनकम को हम प्रॉपरली डिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं ना आप? अगर वो इनकम प्रॉपरली कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज हम उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं इस प्रोविजन का, हम जानने का प्रयास करेंगे जब हम कैपिटल गेन्स का चैप्टर करेंगे, जहां पे लिटरल इंटरप्रिटेशन को नहीं माना जाएगा। कई सारे केस लॉज भी हम डिस्कस करेंगे, आप नोट करके रखिए इस पॉइंट को। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट सिर्फ इतना कहता है अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन से कंप्यूटेशन प्रॉपरली कंप्यूट नहीं हो पा रही है तब आप इस लिटरल इंटरप्रिटेशन को नहीं फॉलो करेंगे। ऑलराइट, बिकॉज अगर वो लिटरल इंटरप्रिटेशन से, मशीनरी प्रोविजन के लिटरल इंटरप्रिटेशन से चार्जिंग सेक्शन डिफीट हो रहा है तो आप क्या चाहेंगे? चार्जिंग सेक्शन डिफीट हो जाए? नहीं ना। तो आप मशीनरी प्रोविजन को इस तरह रीड करना मांगेंगे जिस तरीके से चार्जिंग सेक्शन बरकरार रहे। अभी सर चार्जिंग सेक्शन क्या है? सर चार्जिंग सेक्शन हम जब सेक्शन 4 पढ़ेंगे अभी नीचे तब हम जानेंगे क्या है। चार्जिंग सेक्शन वह सेक्शन होता है थ्रू विच द पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ इनकम इज ब्रॉट टू टैक्स। ये हमें बहुत जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द चार्जिंग प्रोविजन, व्हाट इज द मशीनरी प्रोविजन? चार्जिंग प्रोविजन is the provision by which the legislature tax a particular income, and the machinery provision is the mechanism by which the income which is chargeable to tax is deduced. Alright, तो machinery provision वो कंप्यूट करने का, जैसे अगर आपको कोई सवाल दिया जाता है मैथमेटिक्स का तो आप क्या करते हो?
आप वो सॉल्व करते हो। वो जो थ्योरम है वो चार्ज है, दैट इज द थ्योरम इज द चार्ज, और जो मेथड्स ऑफ कंप्यूटेशन है दैट इज द मशीनरी प्रोविजन। ठीक है, अब लिटरल इंटरप्रिटेशन कहां लगाएंगे, जब व्हेन टू कंस्ट्रक्शंस आर पॉसिबल, ठीक है, एंड स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन रिजल्ट्स इन एब्सर्डिटी। सिर्फ existence of two interpretation is not the mandate, existence of two meaning plus result of literal interpretation into absurdity। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दो व्यूज पॉसिबल हो, और अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन में चले जाएंगे तो वो लिटरल इंटरप्रिटेशन एब्सर्ड आउटपुट निकालेगा, जो इंटेंशन में नहीं है, और जो चीज़ पूरे स्कीम ऑफ द एक्ट को के संबंध में नहीं है। अगर हम स्कीम ऑफ द एक्ट को देखेंगे तो अगर जो लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसका जवाब कुछ और आ रहा है, और जो स्कीम ऑफ द एक्ट का इंटेंशन है वो कुछ और है, तो उस एब्सर्डिटी को रिमूव करने के लिए हम लिटरल इंटरप्रिटेशन से डेविएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी रूल ऑफ लिटरल या स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन में क्या जाना, या इंटरप्रिटेशन में ये जाना कि वी हैव टू रीड द प्रोविजन एज इट इज। ऑलराइट, हमने क्या जाना, चार्जिंग प्रोविजन है, लिटरल इंटरप्रिटेशन आप अप्लाई करिए, लिटरल या स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन अप्लाई कीजिए। अगर मशीनरी प्रोविजन है तो पहले लिटरल इंटरप्रिटेशन को दी जाइए। अगर वो एब्सर्ड रिजल्ट निकाल रहा है, एब्सर्ड, तब आप इंटेंशन पे जाइए, जो हम नीचे पढ़ेंगे। अगर पीनल प्रोविजन है, लिटरल इंटरप्रेट कीजिए। लिटरल इसलिए इंटरप्रेट कीजिए ताकि वो उसके काउंटोर्स, जो उसके कौन कौन से ऑफेंस, कौन कौन से मिस्टेक्स जिसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी लगी होनी चाहिए, वो प्रॉपरली डिफाइन हो। आप बात समझ पा रहे हैं? अगर हम पीनल प्रोविजंस को लिबरली मतलब बहुत ही बड़ा चढ़ा के फ्लूइड रूप में, जैसे पानी की कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, अगर उस रूप में पढ़ेंगे हम, जैसे सॉलिड की बाउंड्री होती है, फ्लूइड की बाउंड्री नहीं होती है, अगर हम पीनल प्रोविजंस को फ्लूइडली पढ़ेंगे तो क्या होगा, कई सारे ऐसे मिस्टेक्स, ऐसे ऑफेंसेस भी कवर हो जाएंगे उस पीनल प्रोविजन में जो कि इंटेंशन नहीं थी। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, और पीनल प्रोविजंस का इफेक्ट हमारी इक्विटी और जस्टिस से ही नहीं होता, हमारी लिबर्टी से भी होता है। आर्टिकल 21 में तो ध्यान रखिएगा, टैक्सिंग प्रोविजन्स हमसे हमारे पैसे छीनता है, हमसे हमारे मेहनती कमाई छीनता है। तो वो हमसे इसलिए छीनता है क्योंकि उससे एक ब्रॉडर डेवलपमेंट होना होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमसे वो पैसा, वो चीज़ ना छीने जिससे हमारी जीवन की जीने की राह ही खत्म हो जाए। दैट इज गवर्न अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में इसलिए पीनल प्रोविजन को और टैक्सिंग प्रोविजन को स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन क्यों दिया जाता है, बिकॉज दे हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ हिटिंग एट द रूट ऑफ द लाइफ एज एनश्राइन्ड अंडर आर्टिकल 21। डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो प्रोविजन है, डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो हमारे को लिबर्टी है, डिग्निफाइड लाइफ, वो आर्टिकल 21 में है। अगर आप ये कहोगे कि भाई मेरी इनकम 3 लाख रुपए है और आपको टैक्स 2 करोड़ रुपए का देना है, मैं क्या करूंगा? मेरे को 2 करोड़ का लोन नहीं मिल सकता, मैं ये सालाना की इनकम 3 लाख रुपए है तो मैं 2 करोड़ रुपए कहां से लाऊंगा? दैट इटसेल्फ वुड रिजल्ट इन एग्जीक्यूशन, और वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। बिकॉज आप क्या कर सकते हो, पेनल्टी जो लगा सकते थे सिर्फ आप, लेकिन आपने बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के मेरे को एग्जीक्यूट कर दिया। क्यों एग्जीक्यूट कर दिया? भाई मुझे सुसाइड करना पड़ेगा ना, भाई 2 करोड़ रुपए कहां से लाऊंगा? मेरी इज्जत बेइज्जती कर दी। तो इसलिए क्या करा कि पीनल प्रोविजंस को स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना चाहिए। स्ट्रिक्टली मतलब जो उनकी बाउंड्रीज है बस उतना ही, फ्लूइड नहीं छोड़ना चाहिए। बात क्लियर हो गई ना? इसलिए हम पीनल प्रोविजन को ऑलवेज लिटरली इंटरप्रेट करेंगे, और लिटरल करने का सिर्फ एक कारण ये नहीं, दूसरा कारण क्या भी ये भी है कि उन्होंने, लेजिस्लेचर ने एक लैंग्वेज डिसाइड करी, लेजिस्लेचर ने एक इंटेंशन अपनी लैंग्वेज के थ्रू डिसाइड करी, उसको फ्रेम करा। तो अगर हम उसको फ्लूइड छोड़ देंगे तो कई ऐसी जगह हो सकती हैं जहां गैप्स हों, लूप होल्स हों, है नहीं, और वो इंटेंशन से बाहर चली जाएगी। बात समझ रहे हैं? उस लैंग्वेज का प्रॉपर
इस्तेमाल करते हुए हमें इंटरप्रेट करना है और स्ट्रिक्ट रखना है, ताकि कोई चीज़ जो उसमें कवर होती थी वो छूट ना जाए और जो नहीं होनी थी वो कवर ना हो जाए। बात समझ पा रहे हैं आप? लिटरल इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है कि भाई ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो चीज़ कवर होनी थी वो होनी ही है, और इस बॉक्स के बाहर जो कवर नहीं होनी थी वो नहीं ही होनी, उसको कवर करना ही नहीं है। ये है स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। तो पीनल प्रोविजंस को आप हमेशा उस तरह करेंगे। अब जब हम बात आती है अपील की, तो क्या अपील को भी हम स्ट्रिक्टली करेंगे? जी नहीं। अपील प्रोविजंस को दो हमारा प्रेफरेंस हमेशा स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की लेगी, लेकिन अगर हम अपील के प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे तो हम एक बेनिफिशियल, एक कंसल्टेटिव ओपिनियन रखेंगे। किस लिए? अगर उसमें अपील में लिखा हुआ है 30 डेज का टाइम पीरियड है कि 30 डेज के अंदर अपील फाइल करनी है, लेकिन हम 30 डेज के अंदर अपील फाइल नहीं कर पाए, हमारे पास रीजनेबल कॉज है, रीजनेबल कॉज है, सफिशिएंट कॉज है, तो क्या अब डिले कंडोन हो जानी चाहिए? यस, डिले कंडोन हो जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, डिले कंडोन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ लिमिटेशन एक्ट नहीं अप्लाई होगा। डिले कंडोनेशन के लिए हमारे एक्ट में स्वयं ही पावर दी गई है, हम लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 5 में नहीं जाएंगे, हम यहीं पे इसी एक्ट में काम करेंगे। जैसे हमने बताया था, दिस इनकम टैक्स एक्ट इज अ प्रोसीजरल एज वेल एज अ सब्सटेंटिव लॉ। तो क्या हम उसमें लिखा कि हमारे पास 30 डेज में आप अपील नहीं फाइल कर पाए तो क्या हमारी अपील डिसमिस हो जाएगी? द आंसर इज नो। वाई आंसर इज नो? बिकॉज हमें बेनिफिट देना है, ये प्रोसीजर है अपील का। अगर आपके ऊपर कोई टैक्स लग गया तो इट इज अ प्रोसीजर, इट इज नॉट अ चार्ज, इट इज नॉट अ पीनल प्रोविजन। वो अपील है, उसको आपको उस तरह डिसाइड करना है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के लिए 30 डेज दी गया, उस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को एक सर्टेनिटी लाने के लिए 30 डेज में नहीं हो पाया, बट द सब्सटेंटिव पार्ट इज द ऑर्डर इज इलीगल, द ऑर्डर इज इनवैलिड, और बस 30 डेज के टाइम पीरियड में उसकी इग्नोरेंस की वजह से उसको टैक्स लगा दिया गया। क्या वेदर द मेयर इन इग्नोरेंस, उसके वजह से ये सब्सटेंटिव राइट उसे खत्म कर दिए जाएंगे जस्ट बिकॉज कि 30 डेज का टाइम पीरियड था और ही इज गिविंग एन एक्सक्यूज विच इज नॉट अ सफिशिएंट एक्सक्यूज, बट द ऑर्डर इज इलीगल, द ऑर्डर इज इनवैलिड। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? द आंसर इज नो। आपको अपील प्रोविजंस को लिबरली इंटरप्रेट करना होगा ताकि सब्सटेंटिव जस्टिस, अपील प्रोविजन बनाने का मकसद क्या होता है? अपील प्रोविजन बनाने, अपील समझते हैं ना भाई, एक व्यक्ति ऑर्डर, एक असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर करा, अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम किसी हायर अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, जज साहब देखिए ये जो छोटी अथॉरिटी है, आपसे नीचे वाली अथॉरिटी है, उन्होंने गलत कर दिया। बात समझ पा रहे हैं? तो अपील प्रोविजन को इस तरह करना चाहिए कि जो उनका पर्पस क्या है, ताकि एक बहुत बड़ी रेमेडी दी जा सके, एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया जा सके कि भाई छोटे अफसरों से कोई गलती हो सकती है, उन गलतियों को बड़े अफसर ठीक कर सकें। बात समझ पा रहे हैं आप? तो उन प्रोविजंस को अगर हम लिटरली और स्ट्रिक्ट पढ़ेंगे तो कई सारे ऐसे सेक्शन हैं जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए था वो छूट जाएगा, ठीक है, उनकी इग्नोरेंस की वजह से कई कारण हो। तो उन प्रोविजंस को कवर करते हुए हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं, लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं, माफ कीजिएगा, ठीक है। अब हम रिफंड के बारे में बात करें, वही चीज जो हम अपील के लिए बोल रहे थे वही रिफंड के लिए आएगी। अगर आप रिफंड को लिबरली इंटरप्रेट नहीं करेंगे, लिटरल करेंगे, जो रिफंड गवर्नमेंट को अपने पास नहीं रखना था वो रख लेगी। सपोज क्या था, आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने का टाइम पीरियड सपोज 2 ईयर्स था, ऑलराइट, और उस 2 ईयर्स में आपने एप्लीकेशन फाइल नहीं करी, तो क्या होगा? क्या आपका रिफंड गवर्नमेंट रख लेगी अपने पास, जबकि अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है, वो पैसा आप रख ही नहीं सकते, रिफंड करना था जस्ट बिकॉज, और वो कंडोनेशन की एप्लीकेशन बता दे रहा है और एक रीजनेबल कॉस्ट दे रहा है। तो क्या रिफंड की एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी चाहिए या एक्सेप्ट करनी चाहिए? बताइए। यस, सही पकड़े हैं, रिजल्ट रिफंड की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए बिकॉज देयर इज सफिशिएंट कॉज, और उनको हम लिबरली इंटरप्रेट करना चाहिए। अथॉरिटी ऑफ लॉ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हमें ये ऐसा करना चाहिए। ऐसे डीमिंग प्रोविजंस है, डीमिंग प्रोविजंस को स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आपने कहा ये इनकम, वैसे तो इनकम है नहीं, कैसे? आपने प्रॉपर्टी सेल करी, एग्जांपल लेते हैं, आपने प्रॉपर्टी सेल करी, ठीक है, आप जब जाते होंगे तो वहां रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री होती होगी, आपने देखा भी होगा, जब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री होती होगी तो वो उसमें कहते हैं सर्कल रेट, वो सर्कल रेट था सर, वो सर्कल रेट 50 लाख रुपीस का था, लेकिन हमारे वो जानकार थे तो हमने वो प्रॉपर्टी एक्चुअल कितने में सेल कर दी? हमने वो प्रॉपर्टी सर 45 लाख रुपीस में सेल कर दी।
सेक्शन 50C के बारे में जिनको जानकारी है वो अपना दिमाग उस तरफ ना लगाएं, जो कंसेप्ट मैं इस समय समझाने वाला हूँ उस कंसेप्ट पे ध्यान रखें, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये सर ये 45 लाख होगी, ठीक है। अब ये जब 45 लाख हो गई तो सर 50C क्या कहता है, ये डिफरेंस है, ये जो 5 लाख का डिफरेंस है ये आपका डीम्ड इनकम है। ओके, ये सर 5 लाख का जो डिफरेंस है सर ये डीम्ड इनकम है। तो क्या हमें इस प्रोविजन को लिबरली पढ़ना चाहिए या नहीं? लिबरली क्या सर, इसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देख लो सर। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस कैसे कि भाई ये प्रॉपर्टी सर कोने की थी, त्रिकोण की थी सर, इसीलिए नहीं बिकती। सर ये प्रॉपर्टी में सर बाढ़ आ जाती है तो पानी के नीचे बह जाती है तो ये बिकती नहीं। बहुत सारे कारण होते हैं सर, ये सब कारण देखो सर, और सर ये कारण देखो सर, और इसके वजह से ये काम की बिकी। उन्होंने कहा सर सेक्शन 50C सब सेक्शन 1 में ऐसा कोई भी प्रोविजन अगर नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। दो ऐसा प्रोविजन 50C 2 में है, ठीक है। तो असेसिंग ऑफिसर कहता है सर असेसी नहीं, एप्लीकेशन नहीं दी सर 50C 2 में आप रेफर करो। 50C 2 में क्या है कि भाई 50C 2 में वैल्यूएशन, डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करा जाता है, जिसमें उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू पता करी जाती है कि एक्चुअल में 45 लाख की थी या नहीं थी। असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि एसएससी ने जो हम पर्सन थे, एसएससी थे, उसने एप्लीकेशन ही नहीं दी सर कि भाई मैटर डीवीओ को रेफर कराया, इसलिए हमने वो 5 लाख रुपए को ऐड कर दिया इनकम में, हमने इनकम मान ली, इसमें टैक्स लगा दिया। तो जब हम डीमिंग प्रोविजंस को रीड करते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंस है मैंडेटरीली असेसिंग ऑफिसर को डीवीओ को रेफर करना है। बात समझते हैं आप? असेसी ने अपने रिटर्न में 45 लाख रुपीस की वो दिखाई है, लेकिन उसने एक स्पेसिफिक क्लेम नहीं कहा कि भाई डीवीओ को रेफर करें। कोर्ट्स ने कहा सेक्शन को आप स्ट्रिक्टली पढ़िए। स्ट्रिक्टली पढ़ने का क्या मतलब है, आप इनकम 5 लाख की कब ऐड कर सकते हैं? आप 5 लाख की इनकम जब ऐड कर सकते हैं जब डीवीओ के पास से रिपोर्ट आ जाएगी और ये भी कहती है कि ये नहीं, ये 50 लाख की बिकनी चाहिए थी, उस रिपोर्ट में ये 45 की नहीं 50 की बिकनी, तभी आप ऐड करोगे, ठीक है। तो बाकी 50C की जो कंसेप्ट है वहीं पढ़ेंगे। तो डीमिंग प्रोविजंस को भी हमें स्ट्रिक्टली पढ़ना चाहिए। सर क्या एग्जेम्पशन प्रोविजंस को भी हमें ऐसा करना चाहिए? सर एग्जेम्पशन प्रोविजन क्या होते हैं? सर एग्जेम्पशन प्रोविजन क्या होते हैं? एग्जेम्पशन प्रोविजंस वो प्रोविजंस होते हैं जो कहते हैं दो इनकम इज कवर्ड बाय दिस एक्ट, इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। जनरल प्रोविजन में, जनरल प्रोविजन कैसे? अंडर सेक्शन 4, ठीक है, रेड विद सेक्शन 2 क्लॉज 24। हम दोनों सेक्शन को पढ़ेंगे आज, वो जानेंगे। तो क्या चार्जेबल टू टैक्स है? ये चार्जेबल टू टैक्स है, लेकिन उन्होंने कहा ये इनकम हम चाहते हैं इस तरह की इनकम को प्रमोट करना, इस तरह के व्यापारियों को प्रमोट करना, इस तरह की इंडस्ट्री को प्रमोट करना, तो हम इस इनकम को एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ऑलराइट, हम क्या कर देते हैं, इसको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है। या क्या कहते हैं कि आपने ये हाउस बेचा, ये हाउस बेचने के बाद आपको क्या हुआ, हाउस बेचने का गेन हुआ, उस गेन को अगर आप रीपरचेज कर लेते हो, कोई हाउस, न्यू हाउस परचेज कर लेते हो आप, तो हम रोल बैक का बेनिफिट दे देंगे, ठीक है। जितना अमाउंट आपने इस न्यू हाउस में परचेज में लगाया, हम उस अमाउंट का आपको एग्जेम्पशन दे देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे कि भाई इतने अमाउंट पे, सपोज आपका आपकी इनकम हुई, गेन हुआ, गेन ऑन सेल हुआ कितना, 50 लाख रुपीस का, और आपने हाउस कितने का परचेज कर लिया, न्यू हाउस कितने का परचेज कर लिया, 45 का, तो हम आपको 45 लाख का एग्जेम्प्ट कर देंगे, ओनली 5 लाख पे ही टैक्स लगाएंगे, ओके। हम आपको पूरे 50 पे नहीं लगाएंगे, हम आपको सिर्फ 5 लाख पे ही टैक्स लगाएंगे। तो क्या ये सर ये एग्जेम्पशन प्रोविजंस है? ऐसे ही बहुत सारे एग्जेम्पशन प्रोविजंस होते हैं जिसमें इनकम को हम नहीं मानते, कई सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, कई बार ये विदाउट कंडीशंस भी इनकम यूनिलैटरली भी गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देती है, और वो हम जानेंगे। तो क्या ये जो सर ये जो प्रोविजन है, इन एग्जेम्पशन प्रोविजंस को भी हमें लिटरली पढ़ना चाहिए या इनको लिबरली पढ़ना चाहिए? इस पर विवाद था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा अगर एग्जेम्पशन में कवर होना है,
एग्जेम्पशन में कवर होने के लिए कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी है, उन कंडीशंस का इंटरप्रिटेशन लिटरल होगा, कंडीशंस का लिटरल होगा, और उस स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के बाद अगर आप कवर होते हो तो उसका जो बेनिफिट देने का कंप्यूटेशन है, बेनिफिट का अमाउंट देने का जो कंप्यूटेशन कितना अमाउंट होगा, या और कोई अदर एंसिलरी कंडीशंस हैं, उन एंसिलरी कंडीशंस का को आप लिबरली पढ़ सकते हो। ओके, बात समझ में? उसने कहा कि सर्टेन सर ये कंडीशन आप फुलफिल करोगे, यू आर अलाउड टू गेट एन एग्जेम्पशन अंडर दिस प्रोविजन, और उस प्रोविजन में फिर एक अमाउंट का कंप्यूटेशन होना है। तो कह रहे जब जो कंडीशंस ये बताती हैं कि भाई ये करने के बाद आप एलिजिबल हो इस एग्जेम्पशन के लिए, फाइन, लेकिन आप ये करने के बाद एलिजिबल नहीं हो, उनको लिबरली नहीं पढ़ा जाएगा। उन्होंने कहा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया सर, 27 तारीख को कोई मकान खरीदना था, मैंने 29 को खरीदा, तो सर इसको थोड़ा लिबरली पढ़िए और 29 को आगे को भी कवर करिए ना, वो आप कंडीशंस फुलफिल करिए। फिर छोटा मोटा कोई एंसिलरी कोई कंडीशन रह जाती है तो वो आप लिबरली कर सकते हैं। हम जब कैपिटल गेन वाला चैप्टर करेंगे तब हम वहाँ पे कुछ केस लॉज ऐसे डिस्कस करेंगे जहाँ पे ये बात आई है। हम डिडक्शंस के बारे में भी जब बात करेंगे, चैप्टर 6 की जब हम बात करेंगे जिसमें स्टैंडर्ड वेरियस डिडक्शंस दी जाती है, तो हम रामनाथ एंड कंपनी और बहुत सारे और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के डिसीजन हम उनको कंसिडर करेंगे, और हम इस प्रोपोजिशन को सामने लाएंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं कि जब एग्जेम्पशन लेने की कंडीशंस हैं उनको लिटरल पढ़िए, और जो कंप्यूटेशन लेने की कंडीशंस हैं उन्हें लिबरली पढ़िए। ठीक है, हम इस बारे में भी जानेंगे। दूसरा क्या है, मिस्चिफ रूल। मिस्चिफ रूल क्या है? एक प्रोविजन लाया गया, एक प्रोविजन क्या लाया गया कि भाई सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम इज टैक्सेबल, उसको अमेंड करने के लिए, तो वो इनकम टैक्सेबल है ही, आप उसको काउंटर अरेंजमेंट करके दूसरे टाइप के अरेंजमेंट करके उसको आप बचा नहीं सकते, लूप होल का फायदा नहीं उठा सकते। ये कब इस्तेमाल करना होता है सर? सर जब अमेंडमेंट्स आते हैं कि भाई पहले ये इनकम टैक्स फ्री हो जा रही थी, कैसे लोग कुछ अरेंजमेंट करते थे और वो उसको टैक्स फ्री ले जाते थे। कैसे? अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो क्या करती थी, एग्जेम्प्ट इनकम क्लेम कर लेती थी। कैसे एग्जेम्प्ट इनकम क्लेम कर लेती थी? भाई सेक्शन 10 में कुछ एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, कुछ सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, ह्यूज प्रॉफिट्स, और कोई टैक्स नहीं देना। तो सरकार ने क्या कहा, हम नहीं, हम सेक्शन कुछ लाते हैं जिसमें मैट लगेगा। क्या सेक्शन 115 जे भी है वैसे, उसमें मैट लगेगा। मैट क्या? इतना मिनिमम टैक्स आपको देना ही देना है, इतना मिनिमम टैक्स आपको देना ही देना है। तो उन्होंने कहा सर ये जो एग्जेम्पशन है इस पे तो लगेगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा सर ये मिनिमम टैक्स किस लिए लाया गया था? ये टैक्स इसलिए लाया गया था कि आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है और आप टैक्स नहीं दे रहे हो, तो इसलिए इनका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। हम वो बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी चीज़ कैसे करते हैं, हम वो सब भी जब पीजीबीपी का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम करेंगे। तो हमें हेडन्स रूल भी कहते हैं, ऐसे मिस्चिफ रूल को क्या कहते हैं? हेडन्स रूल भी कहते हैं। हेडन्स रूल का मतलब है कि अमेंडमेंट का पर्पस क्या है? अमेंडमेंट का पर्पस एक लूप होल को प्लग करना है, उस लूप होल को हम प्लग करना मांगते हैं, प्लग समझ गए ना, भरना मांगते हैं। तो आप कोई भी अरेंजमेंट कर लीजिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, अपनी ट्रांजैक्शन को किसी भी कलर में क्लोक कर लीजिए, वो जो क्लोक जो आप पहनाएंगे, कोई भी जामा आप पहनाएंगे, वो जामे को खोल के हम देखेंगे कि जो पर्पस था उस अमेंडमेंट का, उस अमेंडमेंट से बचने के लिए ही तो नहीं आपने ये कलरेबल डिवाइस, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा आप जब जानेंगे कलरेबल डिवाइस, जब हम गार के चैप्टर के बारे में बात करेंगे, गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, जिसके लिए, ठीक है, जब हम पीजीबी का चैप्टर करेंगे, असेसमेंट का चैप्टर करेंगे, वैसे हम गार को असेसमेंट्स के साथ करेंगे, वो वहाँ पे ही कवर है, ठीक है ना। असेसमेंट्स के जब हम चैप्टर करेंगे तो हम गार को तब करेंगे। अब गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल क्या है कि भाई हम नहीं लिटरल भी नहीं ले सकते, हम लिटरल भी नहीं ले सकते और हम लिबरल भी नहीं ले सकते, भाई दोनों में खतरा है, तो हमने बीच का रास्ता अपना लिया। ठीक है, हमने बीच का रास्ता अपना लिया, उसको हम गोल्डन रूल कहते हैं। ठीक है,
गोल्डन रूल, बीच का रास्ता अपना लिया। कैसे? अब आप देखते हैं सेक्शन एक है सेक्शन 147 जिसमें रीअसेसमेंट कराया जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, आप इसको बस यहाँ मार्क कर लीजिए, मैं इसको दोबारा कराऊंगा। इस केस को जब हम असेसमेंट्स का चैप्टर कर रहे होंगे तो मैं दोबारा कराऊंगा। यहाँ बस एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक सेक्शन का इंपोर्ट कर रहा हूं मीनिंग। उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, अगर आपके पास रीजंस टू बिलीव हैं, ठीक है, आपके पास रीजंस टू बिलीव हैं कि ये पर्टिकुलर एक्स इनकम, ध्यान रखिए, एक्स इनकम पे टैक्स लगना था और वो टैक्स की चोरी आपने इवेजन किया है, टैक्स की चोरी करी है, ठीक है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मैं सिंपल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, एक्ट में इन्वेस्टिगेशन वर्ड नहीं है, एक्ट में असेसमेंट है, लेकिन सामान्य भाषा में समझाने के लिए आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला आपकी वाई इनकम भी, उस पर टैक्स नहीं लगा, उस पर भी आपने टैक्स इवेड करा है। ओके, आपने एक्स इनकम भी चोरी करी है जिसके लिए मेरे पास एविडेंस थे, ठीक है, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें मुझे लगा कि आपने एक्स इनकम की चोरी करी है। लेकिन जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो मुझे पता चला आपने वाई इनकम की भी करी है। तो सेक्शन 147 क्या कहता है, वहां वर्ड इस्तेमाल करता है एंड ऑल्सो, ठीक है। वो क्या कहता है, आप एक्स असेसिंग ऑफिसर जो है, इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, वो एक्स इनकम को भी ऐड कर देगा आपकी इनकम में और वाई इनकम को भी ऐड कर देगा, ठीक है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है एंड ऑल्सो। तो ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के, जब ये दिल्ली हाई कोर्ट के सामने था तो दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कहा, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कहा, उससे पहले थोड़ा सा और चीज जानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में भी बात करेंगे और हम कर्नाटका हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रोविजन, इस फ्रेज को एंड ऑल्सो को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पढ़ा तो दिल्ली हाई कोर्ट ने लिटरली पढ़ा, ठीक है, और कर्नाटक हाई कोर्ट ने पढ़ा तो उसने गोल्डन रूल लगाया, ठीक है। तो हम इन सब के बारे में जानेंगे। अभी हमने क्या जाना, ठीक है, अभी हमने ये जाना कि 147 में एक्स का भी एडिशन कर सकता है, वो ऐड कर सकता है आपकी इनकम में, और वाई को इनकम को भी आपकी इनकम में ऐड कर सकता है। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, जब असेसिंग ऑफिसर थे, असेसिंग ऑफिसर ने ये जाना कि ये जो एक्स इनकम के बारे में जो ये कह रहे टैक्स इवेजन है वो गलत पाया गया, वो रॉन्ग था, कि भाई एक्स इनकम पे उन्होंने प्रॉपर टैक्स दे रखा है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। लेकिन जो वाई है वो प्रॉपर था। तो क्या सिर्फ विदाउट एडिंग एक्स मेरी जेड इनकम है, जेड प्लस एक्स प्लस वाई होता? उन्होंने कहा कि एक्स जो है वो नहीं हो रहा। अब जेड प्लस वाई करके क्या असेसिंग ऑफिसर मेरे हाथ में ये जेड प्लस वाई दे सकता है? द आंसर इज, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा नो। उन्होंने कहा ये जो वर्ड है एंड ऑल्सो, एंड ऑल्सो का क्या मतलब है? एंड ऑल्सो का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एक्स का एडिशन हो रहा है तभी वाई का एडिशन होगा। ओके, उन्होंने कहा अगर आप एक्स का एडिशन नहीं कर पा रहे हैं तो वाई का एडिशन भी नहीं कर पाएंगे। वाई का एडिशन करने के लिए आपको फ्रेश नोटिस देना होगा। बात समझ पाए? उन्होंने कहा अगर आपको वाई का एडिशन करना है तो एक्स का एडिशन करना आपके लिए मैंडेटरी है। और एक्स का एडिशन आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, या एविडेंस है तो उसमें पता चला कि एक्स इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो क्या हुआ? तो क्या एडिशन हो सकता है वाई का? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा ना, इसका एडिशन नहीं हो सकता। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा? कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा सर आप एक्सप्लेनेशन तो पढ़िए। एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी गई। ओके, एक इसमें इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी गई। उसमें क्या कहा कि रीजंस टू बिलीव जो रिकॉर्ड करे थे, उस रीजंस टू बिलीव में एक्स इनकम के बारे में बात थी, वाई इनकम के बारे में कोई जिक्र नहीं था। फिर भी आप वाई इनकम को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा अगर एक्स इनकम के बेसिस पे एडिशन, ऐड, वो आपकी इनकम में ऐड नहीं हो रहा, लेकिन आपने एक्स को, आपने जूरिसडिक्शन, आपने असेसिंग ऑफिसर की जूरिसडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू असेसमेंट ऑफ एक्स चैलेंज नहीं करी। अगर आपने वो जूरिसडिक्शन चैलेंज नहीं करी, इसका मतलब वो आपने जूरिसडिक्शन एक्सेप्ट कर ली। अगर एक्सेप्ट कर ली, इवन इफ एक्स का एडिशन नहीं हो रहा, आप वाई का एडिशन
कर सकते हो वाई इनकम का। बात समझ में आई? इसका क्या मतलब है, उन्होंने एक बीच का लिटरल इंटरप्रिटेशन में एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है कंजंक्शन। अगर एक्स का एडिशन होगा तभी वाई का एडिशन होगा। अगर आप उस सम में इनकम कंप्यूट करने के लिए एक्स ऐड कर रहे हो तभी आप वाई ऐड करोगे। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा अगर आपने एक्स के वजह से जो अजम्पशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन थी उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, उस अजम्पशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन को आपने एक्सेप्ट कर लिया, चाहे एक्स का एडिशन ना हो, एक्स का एडिशन ना हो तो भी वाई का एडिशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको चैलेंज नहीं किया। हम इस केस लॉ को, इन केस लॉज को दोबारा पढ़ेंगे जब हम असेसमेंट्स का चैप्टर करेंगे, आप चिंता मत करिए। मैं तो सिर्फ यहाँ इतनी बात कर रहा हूँ कि हम लिटरल इंटरप्रिटेशन और उसके बीच के डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे थे बस, ठीक है, चिंता मत करिए। कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप चिंता मत करिए। जो भी अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपके साथ शेयर करे हैं उन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, चिंता मत करिए किसी बात की भी। हम टैक्स एक्सपर्ट्स हैं, हम टैक्स एक्सपर्ट बनेंगे, चिंता मत करिए। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मतलब अगर प्रोविजन 1 कहता है ये इनकम टैक्सेबल है, प्रोविजन 2 कहता है ये इनकम नॉट टैक्सेबल है, तो दोनों प्रोविजन को इस तरह करा जाएगा, इस तरह रीड करा जाएगा कि दोनों प्रोविजन फुलफिल हो। क्यों? क्योंकि प्रोविजन 1 में कहा ये कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा, उन्होंने कहा अगर ये कंडीशन फॉलो करेंगे तो ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। तो इन दोनों प्रोविजंस की जो कंडीशंस को इस तरह हार्मोनियसली रीड करेंगे कि इंटेंशन, इस तरह रीड करेंगे कि इंटेंशन प्रॉपर है, इंटेंशन ऑफ द एक्ट जो है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब ये सर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या है? हार्मोनियस का मतलब हो गया अगर दो प्रोविजंस आपस में विरोधाभास दिखा रहे हैं। कैसे? एक प्रोविजन कह रहा है, बिगिन कर रहा है नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, ये मतलब सारे प्रोविजंस को ओवरराइड कर रहा है, ठीक है, और दूसरा प्रोविजन स्टार्ट हो रहा है वेयर, मतलब वो इंडिपेंडेंट प्रोविजन है। तो क्या अगर एक ओवरराइडिंग प्रोविजन और एक इंडिपेंडेंट प्रोविजन दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं, रगड़ खा रहे हैं, तो कौन सा प्रोविजन एक के ऊपर एक जाएगा? द आंसर इज दोनों प्रोविजंस को पहले हार्मोनियसली इंटरप्रेट करने का कोशिश किया जाएगा। फिर जब दोनों प्रोविजंस को हार्मोनियसली रीड करने के बावजूद भी नहीं हो पाएगा तब हम और कोई एक्सक्लूजन थ्योरी और भी कोई जो थ्योरी है, अमेंडमेंट थ्योरी और भी थ्योरी लगाएंगे। लेकिन पहला प्रयास क्या होगा? दोनों प्रोविजंस को इस तरह रीड करा जाए कि दोनों कारगर साबित हो। ये हम जब पढ़ेंगे, जब हम कैपिटल गेन्स का चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हमें कैपिटल गेन्स के चैप्टर में भी आएंगी और बहुत अलग अलग जगह भी आएंगी, लेकिन मैं आपको कैपिटल गेन्स के चैप्टर से बता रहा हूं बिकॉज आई वुड बी पॉइंटिंग दिस हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन while referring to section 45(4) read with section 50 45(3) और which is related to partnership, है ना, हम वहाँ पे आपको इस बारे में अवगत कराएंगे। तो ये जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ये जो हम केस लॉज पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, उन केस लॉज को पढ़ेंगे, उन केस लॉज को अच्छे से समझने में मदद करेंगे। आप सोच रहे हो कि सर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं इन्हें समझाने में, बट इसलिए लगा रहे हैं कि हमें उस समय मदद करेंगे। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं? 2 व्यूज पॉसिबल हैं, तो जो व्यू असेसी को फेवरेबल है वो आप फॉलो करेंगे, ठीक है, अनटिल अनलेस लेजिस्लेटिव इंटेंट कोई और रही हो, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं एजेस्डम जेनेरिस, मतलब अगर आपने लिखा कि आपको डोमिसाइल कैसे प्रूव करना है, आपको डोमिसाइल कैसे प्रूव करना है, आपके डोमिसाइल की वजह से डोमिसाइल की वजह से, रेजिडेंशियल कंसेप्ट की वजह से, रेजिडेंस है ना, और एनी अदर सिमिलर, ठीक है। तो ये वर्ड जो सिमिलर है इसका मतलब क्या लिया जाएगा? ठीक है, आपको शेड्यूल में कहीं लिखा हुआ है, किसी जगह लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? फेविकॉल, अडेसिव,
gum and any other similar। तो इस सिमिलर का मतलब इन सब से रखा जाएगा। जो ये फेविकॉल एडेसिव की कैटेगरी में है तो ये सिमिलर का मतलब जो है ये इससे है। आपको जब लॉ पढ़ाएंगे तो वहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। फिर दूसरा क्या है, नॉसिएटर आ सॉसिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ये ऊपर वाले से थोड़ा सा बड़ा है, एजेस्डम जेनेरिस से थोड़ा सा इसका मतलब बड़ा है। ये सिर्फ वर्ड सिमिलर से मतलब नहीं है। एजेस्डम जेनेरिस तो वर्ड सिमिलर सेम है ना, उसका इंटरप्रिटेशन की बात थी। वो क्या मतलब है यहाँ पे, इसमें वर्ड से क्या मतलब है, कोई वर्ड दिया हुआ है उसका मीनिंग एक्ट में नहीं बताया हुआ है, तो उसका मतलब कैसे निकाला जाएगा, उसका मतलब उसकी कंपनी से निकाला जाएगा। कैसे, एप्पल, ऑरेंजेस, मैंगो, लेमन। ये क्या कैटेगरी है, ये कैटेगरी एक वेजिटेबल या फ्रूट्स की है। तो ये लेमन जो रखा गया है उसी सेम कैटेगरी में, इसका क्या मतलब है, इंटेंशन उससे निकाला जाएगा कि ये किस कंपनी में रखा गया है। हमने लिखा कार, स्कूटर, बाइक, रिक्शा। अब इस रिक्शा का क्या मतलब है, इसका मैनुअल रिक्शा भी मतलब हो सकता है, और वो जो आपका मैकेनाइज्ड ऑटो रिक्शा के बाद होता है वो मैकेनाइज्ड रिक्शा भी हो सकता है। तो इस रिक्शा का क्या मतलब है, हम देखेंगे कि किस कैटेगरी में रखा है। कार भी मैकेनाइज्ड है, स्कूटर भी मैकेनाइज्ड है, मोटर बाइक भी मैकेनाइज्ड है। तो हम मोटर रिक्शा की बात कर रहे हैं, ना कि साइकिल रिक्शा की। ठीक है, हम मोटर की बात कर रहे हैं, साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, ओके। तो हमने सारे लॉज, वो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ लिए। अब आज हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और बाकी टॉपिक्स को भी कंसिडर करेंगे जो हम इस चैप्टर में छोड़ दिए हैं। होप आप में मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई समस्या है, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, डू गेट इन टच विद मी एंड वी विल डू इट। ओके, होप यू आर सेफ और we will become the world leaders, don't worry।